Welcome back all. Respected Rotarians, we are now going to commence the first session of this grand management seminar. The topic of the session is Joy of Giving. The session would be chaired by our past district governor, Rotarian Ravi Narayan Nanda, and request his presence at the dais. We also request the presence of our chief speaker for the session, PDG Rajiv Satendra Sharma from RID 3030 on the dais. Request past governor Ravi Nandaji to give his opening remarks. In the front line, DRMC of the state, DG, and all other esteemed guests, Rotarians, inaugural members, Rotaries, ladies and gentlemen. This is the first technical session going to happen, and the subject is about the gift, the joy of giving. A great speaker, Mr. Sharma, will be there, will be giving his address. Only thing is, I would just ask you one question. Is giving a real joy? Does giving, I'm asking the house, if it is so, are we in the habit of giving? Whatever habit we have, we enjoy it. Things which are not in our habit, we never enjoy it. If we play cricket, we enjoy cricket. If we don't play table tennis, how can we enjoy table tennis? Similarly, a cruel person, he never shows any charity or any mercy towards anybody. He will never enjoy a charity, he will never enjoy softness. He will only like hard actions. A lover, a person who loves others, cannot afford to hurt others because he or she has the habit of loving. So, the very essence of giving is, you must have a habit of it. If you don't make a habit of it, you cannot get the joy. And when you are making a habit of it, not necessarily you give big gifts. The charity begins from the home. We tell, let us be charitable towards our own family members, to the people who are nearby us, then to the society, and then to any person in the world. But that must, our charity, our gifts has to be preceded by our habit, or else we may give but we will not enjoy it. Before ending my inaugural things, I would just like to tell about Karna. Karna was in the habit of giving everything. When he comes from the river after taking his bath and making the Surya Namaskar, whatever a person in front of him asks for, he gives it. Anything. So, he considered that he was a lesser person because the person who is getting the gift, the taker, he is a superior person to him. So, considering that, he became humble and he was giving it. So, one more point please take note of. When you are giving, you have to be humble also, like Karna. And one day, Indra came in the trap of a Brahmin and asked for the Kavacha Kundala, which was his lifeline. He asked for it as a Brahmin, and Karna was committed, he gave it away. Knowing it fully well that he will die if he gives it. So that means he did not make a small charity. He gave away his life. And after doing that, he was never regretting that I did a bad thing. Do you know, in the Purana, who was cursed? It was Indra who was cursed. He was such a mean-minded person, that he got this gift from Karna, who is a great donor. So Karna's image was high and Indra's image went below. Again, one more example you got, that the giver is always in a higher position than the taker. And a giver is a humble person, and a giver is having the habit of giving. These three are essential elements, and I hope our people here, our Rotarians here, know this fundamental very much. At the concluding speech, I will be telling more. But with this, I and my
introduction, and I request our guest today, PDG Sharma. He will be delivering his address. He will tell about the joy of giving. Thank you, sir. Now we will have an heavy introduction of keynote speaker, past Governor Rajiv Satendra Sharma of RI District 3030. Rajiv Sharma is a second-generation Rotarian, joining Rotary at early age in 1993. A graduate of Delhi University, holds 2 postgraduate degrees in pharmaceutical science from King's College London and political science from Mumbai University. Served as Governor of District 3030 and Chairman of Council of Governors at Rotary News Trust in 2018-19, member of the Rotary Foundation Cadre of Technical Advisors 2010-2018, member of RI Committee of Young Past District Governors 2020-21, Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator of Zone 6 2020-22, District Trainer D3030 for 2021-22. Now serving as Endowment and Major Gift Advisor 2022-25, Chair of Membership Satisfaction Team 2021-24 of WASH RAG, Zonal Ambassador, Rotrac Task Force 2020-2023, Zone 6. He also serves as expert member of the Board of Studies in Management Studies of North Maharashtra University, Jalgaon 2019-2024. He has spearheaded several Rotary Foundation grant projects costing more than $10 million. Ladies and gentlemen, please welcome past Governor Rajiv Satendra Sharma, and we request him to give his keynote address to the gathering. But what happens is, when we give, people will start giving. The first question when, as a Rotarian or when as a person we will ask, why do you give? So most of the people give, बोलते हैं कि भगवान चाहते थे मैं दूँ तो इसलिए मैं देता हूँ. दूसरा बोलता है कि लोगों को ज़रूरत है इसलिए मैं देता हूँ. मैं बांटना चाहता हूँ, मेरे पास है इसलिए मैं देना चाहता हूँ. अब ये सब चीज़ें करने से क्या होता है? आपको खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है. कोई भी चीज़ को देने के बाद आप मान के चलिए कि आपको अगर खुशी ना मिली तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपने कभी कुछ अच्छा काम किया. आपको जब दुनिया की दूसरे लोगों पे फोकस करते हैं, when you focus on the worries of other people, your relief worries seems to be very insignificant. There is a song in Hindi about it, right? आप लोगों ने वो गाना सुना होगा. दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया. तो giving provides you the opportunity to live and give beyond yourself or see a bigger picture. कबीर कहता है कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, वो पर पीर न जानिए जो काफिर बेफिर. जो व्यक्ति दूसरों का दुर्दर्द समझता है वो संत है, और जो नहीं समझता वो काफिर है. तो लिविंग क्रीचर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू व्हेन यू डू गुड. जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली होते हैं. आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी दुश्मनी भूल जाते हैं, और जो आपका स्ट्रेंजर होता है अगर आप उसकी मदद करते हैं तो वो आपका जीवन भर के लिए दोस्त बन जाता है. और हमारे माइथोलॉजी में 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं. जब बिना हक लिए लेने का मन करता है, जो हमारे हक का नहीं है उसको भी लेने मन करता है, तो वहाँ से महाभारत शुरू होती है, राइट. लेकिन जब हक छोड़कर भी लोगों की मदद करने का मन करता है, वहाँ से रामायण शुरू होती है. एंड दैट्स व्हाट वी रोटेरियंस आर यूजिंग. हमारे धर्म में दान की बड़ी वो की गई है कि दान कितना बड़ा होता है. दान हमारे लिए आइडियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक सेंस भी है.
इकोनॉमिक सेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम सामने वाले की मदद करते हैं और वो खुश रह सकता है और वो उसके समाज में एक अपना स्थान बना सकता है हमारी मदद से, तो हम एक समाज में एक सामता लाते हैं, उससे वी फील हैप्पी अबाउट इट, द पीपल फील हैप्पी अबाउट इट। एक वासु जी ने कहानी सुनाई थी कि फ़कीर की कहानी सुनाई थी। वैसा ही एक फ़कीर एक बार एक दुकान में पहुंचा, दान मांगने लगा, तो एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा काम करने का बेहतरीन काम समय कौन सा है बाबा? तो फकीर ने मुस्कुरा के कहा, मौत से एक दिन पहले। राइट, मौत से लेकिन मौत का तो कोई वक्त नहीं होता, वो व्यक्ति ने कहा। तो फकीर ने मुस्कुराने कहा, जो जिंदगी हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। आज अगर अपना दिन आपका आखिरी समझते हो और आज से ही खुश रहने का सीख लेते हो, तो आपको देने की आदत पड़नी बहुत जरूरी है। एवरी डे दैट यू सर्व इन रोटरी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज लाइफ्स। Those opportunities might look small to you. You might sometimes think what we do doesn't matter, but it does matter. He spoke about all the kinds of gifts you can give. Even if you are a sustaining member, you are doing good. Even if you are a major donor level 4, you are doing good. So even the smallest of the contribution you give to Rotary Foundation makes a difference. Smallest of the things. And how do we learn from this? Our Rotary's 4-way test. It teaches us to retrospect about 4 things: truth, fairness, goodwill, and how it can be beneficial to all. Or it is a mirror to us. We don't put 4-way test behind us so that our customer can see. We put 4-way test in front of us because वो अपना चेहरा अपने को दिखाता है, हमारी बिहेवियर कैसी है, हम सोचते कैसा है, हम करते कैसा है, वो 4-way टेस्ट हमको सिखाता है। हमको दूसरों को वो दिखाने की जरूरत नहीं। चेंज सर्व टू चेंज लाइव्स, जब शेखर मेहता कहते हैं, ही इज नॉट आस्किंग टू चेंज द वर्ल्ड, ही इज आस्किंग टू चेंज योरसेल्फ। व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग, बी द चेंज यू डिजायर इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने जो कहा था वो यहाँ तक लागू होता है। सो व्हेन यू डू दैट, मैं अपनी इबादत खुद कर लूँ तो बुरा क्या है? मैं अपनी इबादत कर लूँ तो बुरा क्या है? किसी फकीर से सुना था कि उसमें मुझ में खुदा रहता है। So if we can find God in ourselves, imagine the joy you can have when we forgive. And when we talk about religions, when we talk about faith, one thing is sure. Whether you consider those stories of Ramayana or Mahabharata or Bible or Quran or anything as a mythology or truth, it does not matter. The truth of stories do not matter. But the truth in those stories are very important for us. We learn from those stories, and if we come down from Mahabharata, Ramayana, Gita and all, we will find that everything what we learn here in Rotary is derived from there. The best slope from Gita is the crux of Rotary. Karmanyevadhikarasте ma phaleshu kadachana ma karmafal hetu bhuryoth sangito bho karmani. अपना कर्म पे अपना अधिकार है, लेकिन हमको फल की चिंता नहीं करना है। Service above self tells us that. This important story and religious stories are important because we want to try to understand the truth behind this. We want to try to understand what community needs. मसला ये नहीं है कि दर्द कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह किसे है। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राम हो, चाहे गांधी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे कोई भी हो आज की दुनिया के महान व्यक्तियों में से देख लो, दान को वो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और सिख धर्म में दान को 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में बांटा गया है। दान में क्या था, उसमें 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिखिज्म में, वो है नाम जपो, कीरत करो और वंद चखो। क्या मतलब होता है इन लोगों का? पहला है नाम जपो, बी वेरी ऑनेस्ट, रिमेंबर गॉड ऑलवेज एंड बी ट्रांसपेरेंट इन योर लाइफ। देन कीरत करो, कीरत का मतलब अपने घर गृहस्थी संभालो, समाज की सेवा करो, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। हम लोगों को सिखिज्म साधु संत महात्मा योगी बनने को नहीं सिखाता, वो सिखाता है अपने वोकेशनल स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करके समाज की सेवा करना। तीसरी चीज़ जो सिख धर्म सिखाता है, बंद करो, कि अपने खाने को, अपने वेल्थ को और अपने टैलेंट को बांटो, खाओ भी और खिलाओ भी। बनारस के एमपी चाहे कुछ भी कहते हो, सिखिज्म कहता है खाओ भी और खिलाओ भी। When you are having food, it is to be for all। हम और इसमें 3 चीज़ें हैं,
हेड, हार्ट और हैंड तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं। उस तरह एक डीटीएच मालूम आपको क्या होता है? डिजिटल होम, अपने यहाँ पे डीटीएच सिस्टम्स वगैरह लगे हुए ना, टाटा स्काई वगैरह के, तो डीटीएच अगर आप याद रखेंगे तो यू विल इमेजिन हाउ हैप्पी यू कैन बी इन योर लाइफ। D comes with 3 D's. It is desire to good, direction, you know where you have to do good and give donations. Then T also says the same thing. It says you have to give your time, you have to give your talent, and you have to give your treasure. When I speak of give or talent, giving, joy of giving is not just giving money. Giving your time and talent will give you more joy. Like बासु said, उस व्यक्ति ने जब पैसा दिया तो वो व्यक्ति जो व्हील चेयर दे रहा था उसने कहा कि तुमने जो पैसा दिया है वो व्हील चेयर देने हम नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलो व्हील चेयर देने। तो उस व्यक्ति का टाइम भी उसमें गया और उसने जब बच्चों की स्माइल उसकी शक्ल पे देखी तो उसको पैसे देने से ज़्यादा खुशी वो व्हील चेयर देते वक्त वो बच्चों की शक्ल देखने में हुई कि नहीं? सो दैट इज वॉट जॉय ऑफ गिविंग इज ऑल अबाउट। और स्वामी विवेकानंद ने तो हम लोगों को जो आज हम लोग पढ़ते हैं रोटरी में वो 200 साल पहले शिकागो में ही कह दिया था कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। व्हाट यू गिव टू गॉड इन द टेम्पल्स, चाहे बाबा विश्वनाथ यहाँ के हों, चाहे मथुरा में कृष्ण भगवान हो, चाहे कोई भी हो, उनको दिया हुआ पैसा गरीब तक या इवन उन भगवान तक पहुँच रहा है या नहीं वो गारंटी नहीं है। लेकिन आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो वो पैसा उस गरीब के थ्रू भगवान तक जरूर पहुंचता है। और उसके लिए जरूरी हम मान के चलें कि दुनिया में हमसे बुरा कोई नहीं है और दुनिया से अच्छे हम नहीं हैं। ये भी सिखिज्म हमें सिखाता है, हम नहीं चंगे और बुरा नहीं कोई। ये चीज़ें जब हमारे यहाँ इंकलकेट होती हैं तो जॉय ऑफ गिविंग का मज़ा अलग ही कुछ हो जाता है। आजकल हमारे समाज में इस चीज़ को इतना उलझा दिया हुआ है, एक शायर कहता है इस कदर उलझा दिया है दिमाग सियासतदारों ने, इतना इस कदर उलझा दिया है दिमाग सियासतदारों ने कि बेहाल देखता हूँ किसी को तो सोचता हूँ पहले जात पूछूं कि उसका हाल पूछूं। हम लोगों ने ये नहीं पूछना है। एज अ रोटेरियन हमने लोगों का दिमाग चेंज करना है। अगर वो ज़रूरतमंद है तो वो ज़रूरतमंद है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसकी मदद करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। काइंडनेस और जेनरॉसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें जब हम लोग करते जाते हैं तो इसका मज़ा लेने का कुछ अलग होता है। जो चेंजेस हम लाने जाते हैं वो अलग हो जाता है। व्हेन वी गिव टू गॉड एंड एज आई सेड वी आर नॉट श्योर दैट इज देयर, लेकिन जब हम समाज की सेवा करते रहते हैं तो इन चीज़ों का मुनाफा हम लोगों तक मिलता है। मंदिर भी साफ हमने किए, मस्जिद भी किए पाक। मुश्किल यह है कि हम दिल की सफाई नहीं कर पाते हैं। दिल की सफाई जब हम करने जाते हैं तो आज को जब 1917 में शुरू किया उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चीज़ रोटरी फाउंडेशन को हम रोटेरियन इतना बड़ा बना देंगे। उसके इमेजिनेशन के बियॉन्ड रोटरी फाउंडेशन हमने बनाया। वो इसलिए नहीं बना कि 500 लोग AKS बन गए या 200 लोगों ने 4 लेवल 4 मेजर डोनर बन गए या जो बन गए, उसमें वो इसलिए हो पाया क्योंकि हर रोटेरियन ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रोटरी फाउंडेशन को दिया। छोटी से छोटी चीज़ उसमें वो खर्च की। ख्वाहिशें कितनी भी छोटी हो लेकिन उसको पूरा करने की जिद अगर हम में है तो वन गुड वर्क एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, एंड दैट्स ऑल इट टेक्स। एक छोटी सी लड़की थी, बैंक में उसने नया खाता खोला था, कॉलेज में उसका नया एडमिशन हुआ था। जब वो वहाँ गई उसने देखा कि उसके सामने एक सीनियर बहुत ही रिटायर्ड 80 ईयर्स की एक लेडी बैठी है। अनफॉर्चुनेटली उसकी ATM से उसने जब पैसे निकाले थे वो वहाँ भूल गए, कार्ड निकाला और चली गई। वो पैसे कोई और जो उसके बाद में आया वो लेके चला गया। वो मैनेजर के पास शिकायत करने आई थी। मैनेजर ने कहा वीडियो देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, आपको 4-5 महीने में पैसे वापस मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर वगैरह वगैरह आश्वासन दे रहा। अब वो लेडी की ऑलमोस्ट पूरी पेंशन जो वो 1 तारीख को मिलते ही 5 तारीख को निकाल लेती थी वो चोरी हो गई थी। उसके पास घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो बेहाल थी। ये लड़की ने वो बात सुनी,
उसने धीरे से मैनेजर के कान में कहा कि मेरी सैलरी आज पहली सैलरी भी इसमें आई है, मेरी सैलरी काफ़ी है, आप उसमें से 500 रुपये इस लेडी के अकाउंट में चुपचाप ट्रांसफ़र कर दो, ये वो उसको यूज़ कर सकेंगे। मैनेजर की बात जब ये हो रही थी, बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति ने भी ये बात सुनी। उसने कहा कि मैनेजर साहब ऐसा करो, 500 मेरे भी डाल दो। मैनेजर को बुरा लगा, उसने कहा ठीक है, उसने अपने अकाउंट में से 500 ट्रांसफ़र कर दिए। ये बात धीरे धीरे जब पूरे बैंक में फैली, सबने धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे उसमें डाल दिए, तो वो लेडी को दिन के एंड तक 8,000 रुपये वहाँ जमा होगा। अब बताइए, अगर वो एक लड़की ने इनिशिएटिव लेके पहले 500 रुपये अकाउंट में नहीं डाले होते, तो वो लेडी को 5 महीने 6 महीने तक कुछ भी नहीं मिला होता और वो पैसे शायद उसको मिले भी नहीं होते। और अब आपको वो लड़की बनना है, आपको पहला 500 रुपया रोटरी फाउंडेशन को या ऐसी जगह देना है जहाँ पे कुछ काम अच्छे हो सके। आप अगर पड़ोसी की तरफ देखेंगे कि वो पहले देगा तो मैं दूंगा, तो कोई नहीं देगा। पहला 500 रुपया आपने देना है, वो लड़की आपको बनना है। जब आप वो बनते हैं तब जाके अच्छी चीज़ें उसमें हो पाती हैं। हम लोग जब ये पोजीशंस लेते हैं, हम लोग आप बचपन में जाते तालाब में जब आप जाके एक पत्थर फेंकते थे, तो तालाब में एक बड़ा घेर बनता जाता था और जब तक तालाब नहीं खत्म होता था वहाँ तक वो घेर जाता था, राइट। ऐसे छोटे छोटे कंकड़, सिंबॉलिक कंकड़ जब आपने ज़िंदगी में आप डालते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक रिपल इफेक्ट आप क्रिएट करते हैं। बस आपने निर्णय ये लेना है कि आज से बड़ा पत्थर कल फेंकना है, कल से बड़ा पत्थर परसों फेंकना है, जिससे आज से बड़ा इफेक्ट समाज में जो आप कर रहे हैं वो कल कर पाएँ, उसके बाद परसों कर पाएँ। तो आज से आपको ये प्रण लेना है कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम करके एक रिपल इफेक्ट समाज में एक अच्छे और खुशी का माहौल आपने पैदा करना है। जब आप लोग ये कर पाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है समाज में। हमको ये नहीं देखना है कि दूर तक अंधेरा कहाँ तक जाएगा, पहला दिया हमको जलाना। जब आप ये कर पाते हैं, और ये माजिक, ये जादू हम लोगों के हाथ में भगवान ने हमको दिया हुआ है। आज हम इनफैक्ट ये एयर कंडीशन रूम में बैठे ये सब बातों की चर्चा कर पा रहे हैं, ये भगवान ने दी हुई हमको ताकत है कि हम समाज में जाके कुछ काम करने के लायक हम लोगों को भगवान ने बनाया। और वो प्रिविलेज आपको भगवान ने दिया है, वो आपका अधिकार है, आपको दिया हुआ भगवान ने प्रिविलेज है कि आप एक अच्छा काम समाज में जाके कर पाएंगे। तो उसको खुशी खुशी करिए। और आपके पास पैसे नहीं है तो मैंने ये नहीं कहना ना कि आपको पैसे देने हैं, मैंने कहा है आपको टाइम और टैलेंट भी देना है। टाइम और टैलेंट देके आप क्या कर सकते हैं, CSR में से फंडिंग लाके रोटरी फाउंडेशन को दे सकते हैं, या अपने क्लब में बड़े डोनर्स के पैसे लाके जब वो व्हीलचेयर वाला जैसा प्रोजेक्ट है वो आप कर सकते हैं। वो हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, दिया कुम्हार का और घी जिजमान का, अपना क्या लागे पंडित करे स्वाहा। अपने को तो सिर्फ एक अच्छा हवन कराना है जिससे सबको फायदा मिले, सबको खुशी मिले। ये जब हम लोग कर पाते हैं अपने जीवन के कोई, और अपने जीवन में इन कामों का कोई महत्व तब नहीं रह जाता अगर आप अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, छल करने की कोशिश करते हैं। जब मेहनत करके के बाद सपने पूरे ना हो तो उसको बदलिए। दान को वो लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और सिख धर्म में दान को 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में बांटा गया है। दान में क्या था, उसमें 3 चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिखिज्म में, वो है नाम जपो, कीरत करो और वंद चखो। क्या मतलब होता है इन लोगों का? पहला है नाम जपो, बी वेरी ऑनेस्ट, रिमेंबर गॉड ऑलवेज एंड बी ट्रांसपेरेंट इन योर लाइफ। देन कीरत करो, कीरत का मतलब अपने घर गृहस्थी संभालो, समाज की सेवा करो, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। हम लोगों को सिखिज्म साधु संत महात्मा योगी बनने को नहीं सिखाता, वो सिखाता है अपने वोकेशनल स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करके समाज की सेवा करना। तीसरी चीज़ जो सिख धर्म सिखाता है, बंद करो, कि अपने खाने को, अपने वेल्थ को और अपने टैलेंट को बांटो, खाओ भी और खिलाओ भी। बनारस के MP चाहे कुछ भी कहते हो, सिखिज्म कहता है खाओ भी और खिलाओ भी।
When you are having food, it is to be for all. हम और इसमें 3 चीज़ें हैं, हेड, हार्ट और हैंड, तीनों चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उस तरह DTH मालूम आपको क्या होता है? डिजिटल होम, अपने यहाँ पे DTH सिस्टम्स वगैरह लगे हुए ना, टाटा स्काई वगैरह के, तो DTH अगर आप याद रखेंगे तो यू विल इमेजिन हाउ हैप्पी यू कैन बी इन योर लाइफ। D comes with 3 Ds. It is desire to good, direction, you know where you have to do good and give donations. Then T also says the same thing. It says you have to give your time, you have to give your talent, and you have to give your treasure. When I speak of give or talent, giving, joy of giving is not just giving money. Giving your time and talent will give you more joy. Like बासु said, उस व्यक्ति ने जब पैसा दिया तो वो व्यक्ति जो व्हील चेयर दे रहा था, उसने कहा कि तुमने जो पैसा दिया है वो व्हील चेयर देने हम नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलो व्हील चेयर देने। तो उस व्यक्ति का टाइम भी उसमें गया, और उसने जब बच्चों की स्माइल उसकी शक्ल पे देखी तो उसको पैसे देने से ज़्यादा खुशी वो व्हील चेयर देते वक्त वो बच्चों की शक्ल देखने में हुई कि नहीं? सो दैट इज वॉट जॉय ऑफ गिविंग इज ऑल अबाउट। और स्वामी विवेकानंद ने तो हम लोगों को, जो आज हम लोग पढ़ते हैं रोटरी में, वो 200 साल पहले शिकागो में ही कह दिया था कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। व्हाट यू गिव टू गॉड इन द टेम्पल्स, चाहे बाबा विश्वनाथ यहाँ के हों, चाहे मथुरा में कृष्ण भगवान हो, चाहे कोई भी हो, उनको दिया हुआ पैसा गरीब तक या इवन उन भगवान तक पहुँच रहा है या नहीं, वो गारंटी नहीं है। लेकिन आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो वो पैसा उस गरीब के थ्रू भगवान तक जरूर पहुंचता है। और उसके लिए जरूरी हम मान के चलें कि दुनिया में हमसे बुरा कोई नहीं है और दुनिया से अच्छे हम नहीं हैं। ये भी सिखिज्म हमें सिखाता है, हम नहीं चंगे और बुरा नहीं कोई। ये चीज़ें जब हमारे यहाँ इनकलकेट होती हैं तो जॉय ऑफ गिविंग का मज़ा अलग ही कुछ हो जाता है। आजकल हमारे समाज में इस चीज़ को इतना उलझा दिया हुआ है, एक शायर कहता है, इस कदर उलझा दिया है दिमाग सियासतदारों ने, इतना इस कदर उलझा दिया है दिमाग सियासतदारों ने कि बेहाल देखता हूँ किसी को तो सोचता हूँ पहले जात पूछूं कि उसका हाल पूछूं। हम लोगों ने ये नहीं पूछना है। एज अ रोटेरियन हमने लोगों का दिमाग चेंज करना है। अगर वो ज़रूरतमंद है तो वो ज़रूरतमंद है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसकी मदद करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। काइंडनेस और जेनरॉसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें जब हम लोग करते जाते हैं तो इसका मज़ा लेने का कुछ अलग होता है। जो चेंजेस हम लाने जाते हैं वो अलग हो जाता है। व्हेन वी गिव टू गॉड एंड एज आई सेड वी आर नॉट श्योर दैट इज देयर, लेकिन जब हम समाज की सेवा करते रहते हैं तो इन चीज़ों का मुनाफा हम लोगों तक मिलता है। मंदिर भी साफ हमने किए, मस्जिद भी किए पाक। मुश्किल ये है कि हम दिल की सफाई नहीं कर पाते हैं। दिल की सफाई जब हम करने जाते हैं तो आज कौन जब 1917 में शुरू किया उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चीज़ रोटरी फाउंडेशन को हम रोटेरियन इतना बड़ा बना देंगे। उसके इमेजिनेशन के बियॉन्ड रोटरी फाउंडेशन हमने बनाया। वो इसलिए नहीं बना कि 500 लोग AKS बन गए या 200 लोगों ने 4 लेवल 4 मेजर डोनर बन गए या जो बन गए, उसमें वो इसलिए हो पाया क्योंकि हर रोटेरियन ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रोटरी फाउंडेशन को दिया। छोटी से छोटी चीज़ उसमें वो खर्च की। ख्वाहिशें कितनी भी छोटी हो लेकिन उसको पूरा करने की जिद अगर हमें है तो वन गुड वर्क एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, एंड दैट्स ऑल इट टेक्स। एक छोटी सी लड़की थी, बैंक में उसने नया खाता खोला था, कॉलेज में उसका नया एडमिशन हुआ था। जब वो वहाँ गई उसने देखा कि उसके सामने एक सीनियर बहुत ही रिटायर्ड 80 इयर्स की एक लेडी बैठी है। अनफॉर्चुनेटली उसकी ATM से उसने जब पैसे निकाले थे वो वहाँ भूल गए, कार्ड निकाला और चली गई। वो पैसे कोई और जो उसके बाद में आया वो लेके चला गया। वो मैनेजर के पास शिकायत करने आई थी। मैनेजर ने कहा वीडियो देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, आपको 4-5 महीने में पैसे वापस मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर वगैरह वगैरह आश्वासन दे रहा। अब वो लेडी की ऑलमोस्ट पूरी पेंशन जो वो 1 तारीख को मिलते ही 5 तारीख को निकाल लेती थी वो चोरी हो गई थी।
उसके पास घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो बेहाल थी। ये लड़की ने वो बात सुनी, उसने धीरे से मैनेजर के कान में कहा कि मेरी सैलरी आज पहली सैलरी भी इसमें आई है, मेरी सैलरी काफ़ी है, आप उसमें से 500 रुपये इस लेडी के अकाउंट में चुपचाप ट्रांसफ़र कर दो, ये वो उसको यूज़ कर सकेंगे। मैनेजर की बात जब ये हो रही थी, बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति ने भी ये बात सुनी। उसने कहा कि मैनेजर साहब ऐसा करो, 500 मेरे भी डाल दो। मैनेजर को बुरा लगा, उसने कहा ठीक है, उसने अपने अकाउंट में से 500 ट्रांसफ़र कर दिए। ये बात धीरे धीरे जब पूरे बैंक में फैली, सबने धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे उसमें डाल दिए, तो वो लेडी को दिन के एंड तक 8,000 रुपये वहाँ जमा हुआ। अब बताइए, अगर वो एक लड़की ने इनिशिएटिव लेके पहले 500 रुपये अकाउंट में नहीं डाले होते, तो वो लेडी को 5 महीने 6 महीने तक कुछ भी नहीं मिला होता और वो पैसे शायद उसको मिले भी नहीं होते। और अब आपको वो लड़की बनना है, आपको पहला 500 रुपया रोटरी फाउंडेशन को या ऐसी जगह देना है जहाँ पे कुछ काम अच्छे हो सके। आप अगर पड़ोसी की तरफ देखेंगे कि वो पहले देगा तो मैं दूंगा, तो कोई नहीं देगा। पहला 500 रुपया आपने देना है, वो लड़की आपको बनना है। जब आप वो बनते हैं तब जाके अच्छी चीज़ें उसमें हो पाती हैं। हम लोग जब ये पोजीशंस लेते हैं, हम लोग आप बचपन में जानते हैं, तालाब में जब आप जाके एक पत्थर फेंकते थे तो तालाब में एक बड़ा घेर बनता जाता था और जब तक तालाब नहीं खत्म होता था वहाँ तक वो घेर जाता था, राइट। ऐसे छोटे छोटे कंकड़, सिंबॉलिक कंकड़ जब आपने ज़िंदगी में आप डालते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक रिपल इफेक्ट आप क्रिएट करते हैं। बस आपने निर्णय ये लेना है कि आज से बड़ा पत्थर कल फेंकना है, कल से बड़ा पत्थर परसों फेंकना है, जिससे आज से बड़ा इफेक्ट समाज में जो आप कर रहे हैं वो कल कर पाएँ, उसके बाद परसों कर पाएँ। तो आज से आपको ये प्रण लेना है कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम करके एक रिपल इफेक्ट समाज में एक अच्छी और खुशी का माहौल आपने पैदा करना है। जब आप लोग ये कर पाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है समाज में। हमको ये नहीं देखना है कि दूर तक अंधेरा कहाँ तक जाएगा, पहला दिया हमको जलाना। जब आप ये कर पाते हैं, और ये मैजिक, ये जादू हम लोगों के हाथ में भगवान ने हमको दिया हुआ है। आज हम इनफैक्ट ये एयर कंडीशन रूम में बैठे ये सब बातों की चर्चा कर पा रहे हैं, ये भगवान ने दी हुई हमको ताकत है कि हम समाज में जाके कुछ काम करने के लायक हम लोगों को भगवान ने बनाया। और वो प्रिविलेज आपको भगवान ने दिया है, वो आपका अधिकार है, आपको दिया हुआ भगवान ने प्रिविलेज है कि आप एक अच्छा काम समाज में जाके कर पाएंगे। तो उसको खुशी खुशी करिए। और आपके पास पैसे नहीं है तो मैंने ये नहीं कहना था कि आपको पैसे देने हैं, मैंने कहा है आपको टाइम और टैलेंट भी देना है। टाइम और टैलेंट देके आप क्या कर सकते हैं, CSR में से फंडिंग लाके रोटरी फाउंडेशन को दे सकते हैं, या अपने क्लब में बड़े डोनर्स के पैसे लाके जब वो व्हीलचेयर वाला जैसा प्रोजेक्ट है वो आप कर सकते हैं। वो हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, दिया कुम्हार का और घी जिजमान का, अपना क्या लागे पंडित करे स्वाहा। अपने को तो सिर्फ एक अच्छा हवन कराना है जिससे सबको फायदा मिले, सबको खुशी मिले। ये जब हम लोग कर पाते हैं अपने जीवन के कोई, और अपने जीवन में इन कामों का कोई महत्व तब नहीं रह जाता अगर आप अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, छल करने की कोशिश करते हैं। जब मेहनत करके के बाद सपने पूरे ना हो तो उसको बदलिए, रास्ता बदलिए। सिद्धांतों को बदलना जरूरी नहीं है, ये रोटरी भी हमको सिखाती है। क्योंकि आप इमेजिन करिए एक पेड़ है, पेड़ के जब पत्ते जब सूख जाते हैं तो वो पत्ते खत्म करके नए पत्ते ले आता है, लेकिन वो जड़ों को नहीं छोड़ता। तो हमारे सिद्धांत हमारी जड़ें हैं और हमारे रास्ते वो पत्ते हैं, वो बदलिए। तो ये करते हुए जब हम जाते हैं और बीच में साइड में खड़े होकर ताली बनाना छोड़ दीजिए। रोटरी फाउंडेशन हमको 7 कारण देता है, 7 कारण वो देखिए अच्छा काम करने के लिए। ये 7 फोकस एरिया अगर आप इसको क्रम से बनाएंगे तो आपके क्रेडल से लेके ग्रेव तक जाते हैं। जिस दिन पैदा हुए वहाँ से मैटरनल हेल्थ से शुरू होके आप जब मरते हैं तो आपको क्रीमेटोरियम में अगर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्रीमेटम में चढ़ाओ तो उसमें भी आप ग्लोबल ग्रांट कर सकते हो। तो 7 ग्लोबल ग्रांट वहाँ की जा सकती है। मेरे पास वो 7 फोकस एरिया आपको समझाने का भी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता ही आपके जीवन में कहाँ कहाँ लागू होगा।
आप खुद इमेजिन करिए, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव यू कैन डू ऑल द 7 एरिया ऑफ फोकस। और अगर ये 7 कारण आपको काम करने के लिए नहीं, काफ़ी अच्छा काम करने के लिए नहीं, काफ़ी आपको खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? आपको इन चीज़ों को आज सीखना जरूरी है। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान काम है। बात तब बनती है जब जरिया बन के इनको बचाने की हम कोशिश करते हैं। लर्न एंड सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्न टू लव योर जॉब एंड हैव फन। इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन रोटरी, बी हैप्पी, स्माइल, bring smile to all the happiness. And when you are doing good work here, attending grants management seminar whole day and then doing district assembly in the afternoon and having fun in the evening, don't feel guilty about having fun in the evening कि नहीं मैं क्यों करूँ। ये आपने अपने समय से, अपने पैसे से और अपनी मेहनत से ये चीज़ें अर्न की हैं कि यू कैन बी एंजॉय। मैं भी दो होटल में पियो और चंदा दो मस्जिद में, शाम को फेलोशिप अच्छी इंजॉय करो और रोटरी फाउंडेशन को पैसा भी दो। मैं भी पियो होटल में, चंदा भी दो मस्जिद में, शेख भी खुश रहे और शैतान भी बेजार ना हो। भगवान को भी खुश करो और शैतान को भी दुखी मत होने दो। दैट्स व्हाट रोटरी कैन डू। आपको ये सब चीज़ें करना है। एंड डू नॉट टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली, स्टे चाइल्ड ऑलवेज। हमेशा बच्चे बने रहो। दुनिया में दो ही लोग खुश रह सकते हैं, एक जो पागल है और एक जो बच्चा है। और हम ऐसा रोटेरियन को पागल भी होना जरूरी है और बच्चा भी रहना जरूरी है। हम चाहे गवर्नर बन जाएं, RRFC बन जाएं, DRFC बन जाएं, EMGA बन जाएं, हमारी किसी की भी औकात इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि हम अपने आप को सीरियसली ले सकें। अगर हम अपने आप पे हंस नहीं सकते, हम अपने आप पे खुश नहीं रह सकते, तो आपकी ज़िंदगी कोई काम की नहीं करेगा। आपको बच्चों की तरह खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त इतने रंगत हम खो देते हैं। हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हम उठ के हंसकर उठते थे और आज कई दिन बिना मुस्काए घूमते रह जाते हैं। आप सुबह से कितनी बार मुस्कुराए? आप मुस्कुराए कितने लोग? बिल्कुल ज़रूरी है। आपने दिन में इतनी बार मुस्कुराना चाहिए कि आपके यहाँ से मसल्स दिखने लग जाए, सलमान खान के 6 पैक की तरह। आपको खुश रहना उसमें बहुत ज़रूरी है। और RI प्रेसिडेंट बचई बत्तापुर ने इतनी सुंदर बात बोली थी एक रोटरी फाउंडेशन सेमिनार में बैंकॉक में। उन्होंने कहा था हम लोग आजकल RI प्रेसिडेंट से लेके क्लब प्रेसिडेंट तक सिर्फ फंड लाओ, रोटरी फाउंडेशन के लिए फंड लाओ, कॉन्फ्रेंस के लिए फंड लाओ, इसके लिए फंड लाओ, उसके लिए फंड लाओ, फंड ही फंड लाते रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि फंड में से D हटा दो। क्या बचा? फंड। सिर्फ अगर आप फन करने लगोगे तो डी आपके पीछे भागता हुआ आएगा और फंड रेजिंग अपने आप आपकी हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ को खुश कर सकते रह सकते हैं तो इतना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसमें और खुशियाँ बांटो। सर जब देखता हूँ किसी को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जिसका मन मस्त होता है उसके पास समस्त होता है। बहुत खुशी से रहो। और बहुत आखिरी में 2 चीज़ें बस बोलूँगा कि आपने की हुई प्रॉमिस जब आपने रोटरी ज्वाइन की थी उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। फाइनली मुझे आप लोगों के साथ जब बात करने का मौका मिलता है, मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ मेरे अंदर एक अलग ही चीज़ का संचालन हो जाता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों से बात करते हुए। और अगर मैं बोलते हुए कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसको बताइए, उसकी गलती मेरी नहीं। आपको अच्छा लगा हो मैंने क्या बोला तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और लोगों को बताइए कि मैं अच्छा बोलता हूँ। फाइनली डोनेट ब्लड बहुत ज़रूरी है। डोनेट ब्लड, contribute to TRF Foundation when you are living, and when you die, tell your family to donate your organs and again contribute in your name to Rotary Foundation. उससे आपका नाम हमेशा रहेगा। आपने वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना सुना होगा ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन पछताएगी, छोड़ जाएगी, मौत महबूबा है वो साथ अपने ले जाएगी, मर के जीने की जो वदा जो दुनिया को सिखाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर
जानेमन कहलाएगा। आप जानेमन बनिए, मुकद्दर का सिकंदर बनिए, इतना करके जाइए कि आपके बाद आपको लोग याद रखें। पीपल विल क्राई व्हेन यू डाई। कहावत है ना, जो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसिया हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। अपने आप को जिंदा रखिए, अपने आप को, आपकी लेगेसी रोटरी फाउंडेशन के नाम छोड़ के जाइए। आपके अच्छे कामों को लोगों ने याद रखना चाहिए। आप और एक बात याद रखिए, क्रिटिक्स लोगों से डरिए नहीं। आप जब अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी बुराई करने वाले बहुत लोग आएंगे। बुराई, और आप मान के चलिए, बनारस में कहीं भी घूम आइए, पूरी तक कहीं भी चले जाइए, अच्छे काम करने वालों के पुतले लगाए जाते हैं, बुराई करने वालों के कोई पुतले नहीं लगाता। तो अच्छे काम करिए, अपने आप को जिंदा रखिए हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, PDG Rajiv Ji, for your awesome message sent through your address. It will really ignite all of us to keep doing good in the world through our Rotary Foundation. Now, we request Session Chair PDG Ravi Narayan Nanda to deliver his closing remarks for the session. ତିନୋଟି କଥା ରାଜୀବଜୀ କହିଲେ। କଥା ନମ୍ବର 1, ଯେ ରୋଟାରିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିବା ହେଲା ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଯେମିତି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରାଜୀବ ବାବୁ ଆଜି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ରୋଟାରିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଭଲ କାମ କରିବା। ଏବଂ ଭଲ କାମ ଭିତରେ ଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ କାମ, ତେଣୁ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ, ମୁହଁରେ ହସ ନ ଫୁଟେଇଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବେନି, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଆଣନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଦାନ, ଦ ଗିଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୟ ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, told at the last that you are making fun in everything. In fact, a conference is a fun, an assembly is a fun, everywhere we are doing fun. And just add B to it, fund. That fund is for foundation. The most deserving fund in the world, the most deserving fund for the Rotarians. I will just conclude my conclusion by telling two things. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ବାବୁଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2022-23ରେ let all the presidents become the Paul Harris Fellow for that year. That is the challenge. Let us see how the presidents are meeting this challenge. ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲୁ, ରନ୍ ବଟନ୍ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାରତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେ କହିଲେ, ତମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ $1,000 କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରି ଆସିଥିବ। So all of us, 100% of us contributed 1,000 and went to the international assembly, and we are given a thanks. This is number one. ଦ୍ୱିତୀୟ, କ୍ଲବ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ଦେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର $10 ହଉ ପଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ये डिस्ट्रिक्ट जब 22-23 ऑल कंट्रीब्यूटिंग पर्सन्स डिस्ट्रिक्ट हम समस्त डिस्ट्रिक्ट हम ताकि ग्रेटर चैलेंजेस विल बी देयर फॉर द प्रेसिडेंट्स एंड फॉर द गवर्नमेंट्स। सो लेट अस कीप इट अप। समस्त रिक्वेस्ट जे फाउंडेशन के चैलेंज पे ग्रहण करी विथ जॉय टू स्टार्ट गिविंग। थैंक यू। The fantastic keynote speaker Rajiv Ji. Can we have a very big hand for Rajiv? You know, we forgot to tell you this. Rajiv has come from Florida. He wanted to be with us. He was in US just 2 days before. Yesterday morning he has landed around about 2:30 or something in Mumbai, and then from Mumbai he was there at the airport for a few hours, and from there he went took a connecting flight to Banaras, and then he is here with us. So let's hear it for Rajiv once again. And thank you, our session chair. We request DG Prabhu to kindly felicitate our session chair and keynote speaker. Thank you.
Thank you. We shall take a short break of 5 minutes and then convene the second session, qualification and grant application. All her life, Lata Devi felt embarrassed every time somebody asked her to read or write something, or even put a signature. The thumb mark had become a curse in her life. Lata Devi is amongst India's 26 crore adult illiterates and from 33% of the world's total illiterates. This is Kusum, studying in class 9 of Chaurangi High School. She has decided that she will remove the curse of Lata Devi from her life by making Lata Devi literate in the next 3 months under Rotary India Literacy Mission's Diksha program. Like Lata Devi, more than 85,000 adults have been reached under the adult literacy program through the Swabhiman and Diksha project. Very soon, Lata Devi will sit for an examination conducted by National Institute of Open Schooling, from where she will get the certificate stating that she is literate, that she can read, write and do arithmetic to the level of 2nd standard.